So in the last lecture, we have studied Euler's method. And today, we will study about the modified Euler's method. As the name indicates, modified Euler's method. So it's an improvement over the Euler's method. Euler's method में हमने क्या किया था? We have approximated a curve through a line that passes through the point x naught y naught. If you remember, Euler's मेथड में जो हमने अप्रोक्सीमेशन था हमारा अनेक अप्रोक्सीमेशन था दैट इज ये जो nth अप्रोक्सीमेशन था yn plus 1 is equal to yn plus h f of xn yn हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और ये जो अप्रोक्सीमेशन इवैल्यूएट हुआ था इसमें हमने एक कर्व को दिस इज आवर कर्व एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटेड दैट कर्व एट थ्रू अ लाइन which is passing through x naught y naught ऐसा था. This is my x naught initial, this is x1, x naught, x1, x2. This is in case for the Euler's method. Now what we do in improved modified Euler's method, here we approximated the curve as a line which passes through x naught y naught, and we will take the average of the slope from x naught y naught and x1 y1. So in this method यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, here curve is approximated as a line through x naught y naught and slope is an average of and having slope as the average of x naught y naught and x1 y1.
this y1 represents the first approximation from the Eilers method. तो अगर मैं यहाँ से first approximation evaluate करती हूँ, then I'm getting y naught plus h f of x naught y. So you can see that in this approximation, line will be y minus y naught is equals to x minus x naught. And what we did, we have taken the slope is the average of x naught y naught and x1 y1. So here we have a slope which is the average of f of x naught y naught, f of x1 y1 divided by 2. So that my first approximation in case of modified Eilers method will be, in the first approximation में क्या कर रही हूँ, replacing y by y1, so it's equals to y1 y naught x1 minus x naught f of x naught y naught plus f of x1 y1 divided by 2. This is the only difference in case of for Eilers and the modified Eilers. We have taken the slope here is the average of x naught y naught and x1 y1. So in general, this is the first approximation, or x1 minus x naught will be this difference will be denoted by h. So I can write it as y1 is equals to y naught plus h by 2 f of x naught y naught f of x1 y1. This is the first approximation in case of modified Eilers method. तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू नीड टू रिमेम्बर कि इसका nth approximation क्या होगा, and with the help of nth approximation you can find out the number of approximations. So on the basis of this first approximation, in general we can write yn plus 1 is equal to yn plus h by 2 f of xn by n f of xn plus 1 by n plus 1 star. I'm denoting in general by n plus 1 star, and this by n plus 1 star is evaluating using the Eilers method. Here yn plus 1 star is equals to yn plus h f of xn y. So this is the general formula for modified Eilers method. Is it clear to you? आवाज आ रही है मेरी? Voice is clear? Yes. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. मैंने प्रॉब्लम पढ़ते शायद करने के लिए भी दी थी. Have you solved the problem based on the Eilers method? Last lecture में किया था. And one more thing, अभी तक आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी असाइनमेंट्स एनी मोर. अब कोई सबमिट करने की जरूरत नहीं है. जो फर्स्ट असाइनमेंट था एंड सेकंड असाइनमेंट इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. ठीक है, उसको
In the second assignment, you can see that the problems are from the competitive examinations. So try to solve the problems, और उसमें सबका आपको explanation के साथ submit करना है, जितनी भी problems उसमें दी गई हैं, ठीक है? सिर्फ ऑप्शन को मेंशन नहीं करना है, हर क्वेश्चन का आपको जस्टिफिकेशन देना है, हर प्रॉब्लम का, कि कोई भी आंसर आप क्यों ऑप्ट कर रहे हो. इज दैट ओके? एंड प्लीज डू सबमिट ऑन टाइम. अब की बार मैं किसी का भी लेट असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट करूंगी. इज दैट ओके? यस. Yes, ma'am. ओके, तो एक बार और इसको देख लो आप. किसी भी प्रॉब्लम को आइलर्स, इम्प्रूव्ड आइलर्स, मॉडिफाइड, अगर मैं आइलर्स मेथड की बात करूं तो आइलर्स मेथड में सिर्फ मेरे पास ये था yn + 1 is yn + h f of x and yn. दिस इज द nth अप्रोक्सीमेशन इन केस फॉर द आइलर्स मेथड. अगर मैं मॉडिफाइड आइलर्स की बात करती हूँ तो मॉडिफाइड आइलर्स में जो स्लोप है, दैट स्लोप इज द एवरेज ऑफ x0 y0 एंड x1 y1. दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. तो यहाँ पर वही हुआ है कि जो स्लोप था, वी हैव टेकन द एवरेज ऑफ दिस. ये सिर्फ फर्क है. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या याद रखना है, सिर्फ इसका जो ये अनथ अप्रोक्सीमेशन जो फाइंड आउट हुआ है, yn + 1 is yn, h/2 f of x and yn plus f of xn + 1 yn + 1 star. And this star is will be calculating using the Euler's method, which is yn + h f of xn y. Is that okay? Yes. So let's solve the problem using the modified Euler's method. And write present in the chat box and also mention your branch there. और मैंने सारे वीडियोस ऑल अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, और मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी. अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया है तो वो वीडियोस उसको कवर अप कर सकता है. ओके, so problem is we have dy by dx is x square plus y with y0 is 0.94. It means the value of y is 0.94 when x is equals to 0. And find y 0.1 to 5 significant digits. Sorry, 5 significant figures. With y0 is 0.94 using modified Euler's method. तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड के लिए फॉर्मूला मेरे को पता है कि क्या होता है. अभी मैंने इससे पहले आपको बताया है. बाय n + 1 जो हम इसका nth अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, इक्वल्स टू h/2 f of xn yn plus f of xn + 1 yn + 1 स्टार. अब यहाँ पर जो मुझे वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, वो मुझे इवैल्यूएट करनी है 0.1 पर. ठीक है, तो इसके लिए
गिवन वैल्यू इज एक्स नॉट की वैल्यू इज यहाँ पर 0 एंड एट एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0.94. इट्स गिवन इन द प्रॉब्लम. और y 0.1 पे मेरे को इवेल्युएट करनी है 0.1 पे. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h? h कितना होगा? What will be h? 0.1. Obviously it will be 0.1. ठीक है, 0.1 क्यों होगा? Because x1 is equals to x0 plus h. यहाँ से मैं x1 इवेल्युएट कर सकती हूँ. x1 is x0 plus h. It means x1 is 0.1. ओके, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू किस पे निकालनी है? y 0.1 means the value ऑफ y एट 0.1. जब x की वैल्यू 0.1 है तो मुझे y को इवेल्युएट करना है, यानी मुझे x1 पे इवेल्युएट करना है. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हियर वी हैव dy by dx दे रखा है मेरे को x स्क्वायर प्लस y. इट मींस दिस इज द गिवन फंक्शन ऑफ x एंड y. So by modified Euler's method, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड से y1 की कितनी वैल्यू होगी? y0 plus h function of x0 y0. की जगह मैं क्या रखूंगी? n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. देन आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ y1. ओके, n की जगह मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी तभी तो y1 आएगा. तो मैंने इन जनरल फॉर्मूला आई एम सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू 0. So my first approximation is y0 plus h by 2 f of x0 y0 f of x1 y1 star, and this y1 star is y0 plus h f of x0 y0. ये सारे डेटा मेरे को पता है, ये सारी वैल्यूज गिवन है. y0 इज कितना है? y0 0.94. वैल्यू ऑफ h इज 0.1. 0.1. y0 कितना होगा? X नॉट स्क्वायर प्लस x0 square plus y0. ठीक है, 0.94 0.1 0 प्लस 0.94. तो y1 स्टार मेरा आ गया बताओ क्या आएगा? 1.03 आ रहा है. 1.034. This is y1 star. Now यहाँ से देखो y1 क्या होगा? y1 is equals to y0 कितना है? 0.94. h by 2 means 0.1 by 2 and 1 by 0.05, and f of x0 y0 means f of 0.94, and f of x1 की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पर 0.1, and y1 star is 1.034. Is that okay? Yes, ma'am. yes ma'am. सिंपली इवैल्यूएटेड. मुझे यहाँ पर y1 तक ही निकालना है बिकॉज प्रॉब्लम में पूछा गया है फाइंड y ऑफ 0.1, और 0.1 का मतलब क्या है? x1. तो मुझे जो अप्रोक्सीमेशन निकालना है y1 इज द वैल्यू एट 0.1. इज दैट ओके? y1 कौन सी वैल्यू दे रहा है मेरे को? इट गिव्स द वैल्यू एट 0.1. so it's equals to 0.94
plus 0.05. This is 0 square plus 0.9. 0.94. 0.1 square x square plus y है ना 1.03. Yes, Vikas, any problem? y1 0.94, 0.05, 0.94. तो इवैल्यूएट करने के बाद क्या है 1.044. 1.044. इसको इवैल्यूएट कर लो. इसको इवैल्यूएट करने के बाद आएगा हमारा दिस इज 1.949841. फाइंड आउट द वैल्यू 1.0392. So this is the value of from the modified Euler's method. Okay. Yes, ma'am. So any problem? पीछे जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं अभी तक हमने पिकार्ड्स मेथड पढ़ा है, टेलर सीरीज मेथड, then Euler's method, and now modified Euler's method, and the next will be Milne's predictor and the corrector method. Okay, method. Two methods are remaining. Mute your mic. So next जो हम पढ़ेंगे we will study the Milne's and Adams predictors correctors method. After that we will study about the solutions of polynomial and the transcendental equations. तो अभी इसमें सिर्फ हमारे पास दो मेथड्स और हमें स्टडी करने हैं. अभी तक जो चारों मेथड पढ़े हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. ये क्लियर हो गया ये कैसे कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके तो एक और प्रॉब्लम है जो मैंने पहले आपको बोला था आइलर्स मेथड से जो हमने किया था प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग द मॉडिफाइड आइलर्स मेथड आल्सो. तो लास्ट क्लास में की थी हमने प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को आप इस वाले मेथड से भी करके देख लेना. ठीक है, एनी अदर डाउट? मैम ये फिटिंग कर्व क्या होता है? कर्व को जब हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना होता है किसी भी कर्व के लिए तो हम उसको अलग अलग तरीके से उसको फिट करके निकालते हैं. लाइक कभी उसको स्ट्रेट लाइन से फिटिंग होता है, कभी पॉलिनोमियल से फिट होता है, तो डिपेंड्स. वो अभी हम आगे आपके कोर्स में है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट. मैम वो आपने असाइनमेंट दिया उसमें क्वेश्चन है द मेथड व्हिच गिव्स अ यूनिक सेट वैल्यूज टू द कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ द फिटिंग कर्व. उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी हमने करे नहीं है, मे बी इन द लास्ट यूनिट. ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सक्लूड दैट टॉपिक. अभी शायद उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे रिलेटेड भी हैं, लाइक आर के मेथड की भी हैं या आगे मुझे लग रहा है बाइसेक्शन और डिफरेंस रैप्सोनी की भी है. तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपने नहीं पढ़ी है तो उसको एक्सक्लूड कर देना. ज़्यादा नहीं है वो, शायद 2-3 प्रॉब्लम्स कुछ होगा. ओके मैम. कर्व फिटिंग मुझे नहीं पता अभी आपके सिलेबस में है कि नहीं है, आई थिंक शायद नहीं है. ठीक है, ओके. एनी अदर प्रॉब्लम? गोपाल, पहले कुछ जो भी स्टडी करा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एक और चीज है इसमें
अगर गेट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के पार्ट में से, इनमें से न्यूमेरिकल मेथड्स में से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो आप वो साथ साथ करते रहो, ठीक है। किसी के पास मटेरियल है और डू यू रिक्वायर्ड एनी मटेरियल? गेट एग्जाम के लिए आगे कुछ भी आप दोगे, गेट एग्जामिनेशन इज द इम्पोर्टेंट पेपर, तो उसमें भी न्यूमेरिकल मेथड्स का काफ़ी पार्ट होता है। मैंने जो आपको प्रॉब्लम सेट शेयर करा है उसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने का एक मोटो ये भी है कि वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा साथ में प्रिपेयर होते हैं, तो आप उसको भी साथ साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर देना साथ साथ ना, इट वुड बी बेटर, ठीक है। यस मैम। और कोई प्रॉब्लम? इट शोज कि पढ़ नहीं रहे हो। अभी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, टोटल 41 स्टूडेंट्स आर देयर, और आई डोंट थिंक सो कि अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। समटाइम्स आई फील्स लाइक कि आपने फोन को ऑन तो कराया और उसको उठा के रख दिया। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या काफी सारे ऐसे हैं जिन्होंने लेट सबमिशन भी नहीं किया है असाइनमेंट का, ठीक है। उसकी बात डेट थी बट स्टिल अभी तक नहीं सबमिट हुआ है। हर रोज मेरे पास एक असाइनमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ और पढ़ लो साथ साथ। तो नेक्स्ट क्लास में आपको probably, या तो आर के मेथड और या फिर प्रेडिक्टर एंड द कैरेक्टर मेथड, यहाँ तक तो कंप्लीट कर लो। और आइलर्स मेथड, इंक्लूड आइलर्स, जो हमने आइलर्स से प्रॉब्लम करी थी उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर लेना, ओके। जी मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।